Good morning. Yesterday we had done an illustration of journal, right? Any doubt in that, anyone? Sir. No, sir. No, sir. Okay. Sir, for rules of debit and credit, we can also use the modern formula. Yes. For सर आप किसी भी वे से निकाल सकते हैं ना वो तो क्या चीज निकाल सकते हैं किसी भी वे से? सर मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में से हम मॉडर्न अप्रोच यूज करके भी निकाल सकते हैं ना Yes, yes. We can follow any approach. The result will be the same. The entry will be the same. ओके सर ठीक है? Okay. Yesterday we had started discussing about discount. Let's continue and start discussion from discount once again. Discount we have discussed in our syllabus. We have to deal mainly with two types of discount. One is trade discount, the other is cash discount. Trade discount, I told you, is given generally at the when goods are bought or sold in bulk, in large quantities, right? Whereas cash discount is generally given, or we get a cash discount on for immediate payment. When we do not buy or sell on credit, when immediate payment is made or immediate payment is received, then we call that discount as cash discount generally. This much clear? yes, sir. In case of trade discount, I had told you that it is not separately shown in journal entry. We had taken an example. Suppose goods worth rupees 100 are purchased or sold, and trade discount is 10%. So 10% of 100 is 10 rupees 10 rupees. That means the payment to be made is 90 rupees 90 rupees. So if we are talking about purchase transaction, the entry will be purchase account debit to cash account 90 rupees. On the other hand, if we are talking about a sales transaction, then entry will be cash account debit to sales account 90 rupees with the net amount. Discount will not be shown in the journal entries separately anywhere. Clear? yes sir In case of cash discount, we show the discount separately. Continuing with the same example, goods worth rupees 100 are purchased or sold at a cash discount of 10%. Right? So again, discount amount is 10 rupees and the payment amount is 90 rupees. If only discount is written in the question, we always assume it to be cash discount and we show it separately in journal entry. Clear? Yes, sir. Okay. So our entry will become purchases account debit 100. Now we'll debit the purchases with the full amount before discount. Then we will write to cash account 90 rupees because 90 rupees cash is going out. To discount received account 10 rupees because that is our gain. Similarly, if we are selling at a discount, sales we will credit with full amount, that is rupees 100. 90 rupees we will debit in cash because we will receive 90 rupees, and discount allowed account debit 10 rupees because that is an expense for us. Clear? Yes, sir. Both types of discounts are clear now? Yes, sir. Okay. Now next heading, write down order. Acha, whenever we are doing an illustration or question in the class like we did yesterday, on one page you should note down the question and on the other page you should keep noting down the solution. ठीक है? एक पेज पे क्वेश्चन लिखते जाया करो और दूसरे पेज पे सॉल्यूशन उसका लिखते जाया करो. Order of calculating price, discount and GST. Suppose किसी ट्रांजैक्शन में आपको
कॉस्ट दे रखी है प्रोडक्ट की, उसका प्राइस नहीं दे रखा, कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर, ठीक है। इफ वी आर बाइंग दैट मीन्स कॉस्ट टू द सप्लायर, हमें तो वो कॉस्ट पे बेचेगा नहीं, अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा, है ना, तो प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट भी दे तो रखा है। सर कॉस्ट हमारे लिए सेलिंग प्राइस है। मैंने कहा जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और अगर परचेज वाले गुड्स की हमें दे रखी है कॉस्ट, तो कॉस्ट किसके लिए हुई, मतलब कॉस्ट प्राइस हुआ सप्लायर के लिए जो उसकी कॉस्ट है, ठीक है। तो वो हमें कॉस्ट प्राइस पे तो नहीं बेचेगा ना, हमें बेचेगा वो सेलिंग, अपने सेलिंग प्राइस पे, तो उसका सेलिंग प्राइस हमें निकालना होगा। सिमिलरली जब हम गुड सेल कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन में दे रखी है कॉस्ट प्राइस, वी विल ऑल्सो नॉट सेल एट कॉस्ट प्राइस, हम उसमें अपना प्रॉफिट भी ऐड करेंगे पहले, है ना। तो अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है तो सेलिंग प्राइस पहले हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर? Yes. उसी ट्रांजैक्शन में सपोज हमें एक ही ट्रांजैक्शन में कई चीजें दे रखी हैं, लेट अस से कॉस्ट दे रखी है जिससे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सेम ट्रांजैक्शन में हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है, सेम ट्रांजैक्शन में हमें कैश डिस्काउंट भी दे रखा है, और सेम ट्रांजैक्शन में हमें जीएसटी भी दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में दिए हो सकता है पहले कॉस्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट, फिर जीएसटी के बारे में बता रखा हो। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता है पहले जीएसटी, फिर कैश डिस्काउंट, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर प्रॉफिट बता रखा हो और फिर कॉस्ट प्राइस। थर्ड पॉसिबिलिटी पहले कैश डिस्काउंट, फिर कॉस्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर जीएसटी। So there can be any possibilities, but in our calculations we always have to follow a particular order only. चाहे कुछ भी पहले दे रखा हो, कुछ भी बाद में दे रखा हो ट्रांजैक्शन में, लेकिन कैलकुलेशन में हमेशा हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना है। वो ऑर्डर क्या है अब हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप, अगर हमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सपोज हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹4, हाउ मच? 4 रुपीज। 4 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है आपको प्रोडक्ट की, 1 रुपया पर यूनिट आपका प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो आप बेचोगे कितने में इस प्रोडक्ट को? 5 रुपीज। 5 रुपीज, दैट इज 4 रुपीज कॉस्ट प्लस 1 रुपीज प्रॉफिट, है ना। तो अगर प्रॉफिट 4 रुपए में से 1 रुपए प्रॉफिट है, वी कैन से 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट, कैन बी? यस सर। तो सेलिंग प्राइस में 5 रुपए में 1 रुपए प्रॉफिट है, यानी 1/5 है सेलिंग प्राइस का, है ना। यस। सो अब इसे हम जनरलाइज करेंगे। इफ प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, इट इज 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको हम जनरलाइज करेंगे, सपोज n वी यूज फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, लिखो ये फॉर्मूला, इफ प्रॉफिट इज n अपॉन d ऑफ कॉस्ट, देन इट इज n सर ये अपॉन, नोट्स में लिखा हुआ है तो अभी कॉपी में भी लिखना है? हाँ जी, अभी ये कॉपी में दोबारा भी लिखना है अगर नोट्स में लिखा हुआ है तो? अगर आपने नोटबुक में लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लो आपकी नोटबुक में, ठीक है। इफ प्रॉफिट इज n अपॉन d ऑफ कॉस्ट, देन इट इज n अपॉन d प्लस n ऑफ सेल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? n अपॉन d, n अपॉन d मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ कॉस्ट, देन इट इज n अपॉन d प्लस n अपॉन सेल्स। n है 1 अपॉन d प्लस n मतलब 1 प्लस 4 यानी 1/5, ठीक है। तो जब प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट है होगा तो ये 1/5 होगा सेल्स का। क्लियर हो गई है? Yes, sir. सपोज प्रॉफिट इज 1/6 ऑफ कॉस्ट, तो सेल्स का कितना होगा?
1/7. 1/7. Very good. If profit is 1/2 of cost, 1/3. 1/3 of sales. If profit is 2/5 of cost, 1/3. if profit is 2/5 of cost, then it will be how much of sales? 1/3. I'm repeating, 2/5 of cost. 2/7. Yes, numerator is 2 upon 2 plus 5. That means that becomes 7. So 2 of 7 of selling price, or we can say of sales. Okay. If profit is, let us say, 3/6 of or 3/7 of cost, then 3/10. 3/10. 3/10. वेरी गुड. अब समझ गए हो आप अच्छे से. ठीक है. अच्छा, ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, सपोज द क्वेश्चन सेज द कॉस्ट इज ₹4 एंड प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेल्स. अब सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया नहीं. ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालें? हमें तो बोल दिया प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेल्स और दे रखा है कॉस्ट प्राइस. तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम पहले निकालेंगे, अगर सेल्स का 1/5 है तो कॉस्ट का हुआ 1/4. ठीक है, अभी जो फॉर्मूला हम इसके बाद लिखेंगे उससे सेल से कॉस्ट पे आएंगे. अभी हम कॉस्ट से सेल पे गए. ठीक है. सपोज द क्वेश्चन, लेट मी चेंज द क्वेश्चन. सपोज द क्वेश्चन सेज कॉस्ट इज ₹20. ठीक है, एंड द प्रॉफिट इज, sorry, let me change the question. The selling price is 25. Selling price is 25 and profit is 1/4 of cost. I repeat, selling price कितना बताया मैंने? 25. Selling price is 25,000. And we are given profit is 1/4 of cost price. अब प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4. अगर हमें निकालना है प्रॉफिट सेल का कितना है तो कैसे निकालेंगे? सर तो ये सेलिंग प्राइस का 1/5 हो जाएगा, तो फिर वो 5,000 रुपीज हो जाएगा. 1/5 हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा निकल आएगा 5,000. ठीक है, समझ में आ गया? प्रॉफिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, अगर डायरेक्टली ना दे रखा हो. अब कई बार क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है. हमें दे रखा है कॉस्ट इज लेट अस से 20,000, प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेल्स. तो अब हम प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? अगर प्रॉफिट सेल्स का 1/5 है तो कॉस्ट का कितना होगा? ठीक है, इसके 1/4. यस 1/4. ठीक है, कैसे निकलेगा ये? इसके लिए फॉर्मूला लिखो, इफ प्रॉफिट इज N/D ऑफ सेल्स. इफ प्रॉफिट इज N/D ऑफ सेल्स, then it is N/D minus N of cost. तो अगर सेल्स का 1/5 है तो कॉस्ट का कितना होगा? 1/5 minus 1, that is 1/4. क्लियर? Yes, sir. अगर सेल्स का 1/7 है तो कॉस्ट का 1/6 of cost. वेरी गुड. अगर सेल्स का 2/5 है तो कॉस्ट का 2/3. 2/3. वेरी गुड. अगर सेल्स का 4/9 है तो 4/5 of cost. 4/5 ऑफ कॉस्ट. तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार, Yes, sir. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वर्डिंग इस तरह की होती है, आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, लेकिन दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस.
तो आपको एंट्री करने के लिए सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. एंड समटाइम्स इट इज वाइस वर्सा. Profit is given as a percentage of cost and you are given selling price. Sometimes profit is given as a percentage of sales and you have to find out cost price. तो तब ये दोनों फॉर्मूले आपके काम आ सकते हैं. तो सबसे पहले तो अगर हमें कॉस्ट दी हुई है तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है. ठीक है. सेकेंड स्टेप, अगर हमें सेलिंग प्राइस डायरेक्टली दिया हुआ है या हमने निकाल लिया, उसके बाद हमें देखना है अगर उस ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो सेकेंड स्टेप पे हमें ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है सेलिंग प्राइस या लिस्ट प्राइस में से. क्लियर? यस सर. Yes, sir. सपोज हमें दिया हुआ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज वी आर गिवन कॉस्ट इज, अभी हमने एग्जांपल लिया था 20,000. ठीक है. और हमने प्रॉफिट लिया था 1/5 ऑफ सेल्स. सेलिंग प्राइस ठीक है. तो कॉस्ट का कितना हुआ? 1/4. 1/4. तो इसका मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट. सो 1/4 into 20,000 is equal to how much? 5,000. 5,000. 5,000. ठीक है. 5,000. 5,000 इसका rupees. मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 25,000. 25,000. 25,000. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 25,000 सेलिंग प्राइस हो गया. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन सेज 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो 10% इस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाया. कितना हो गया 10% इसका? 2,500. 2,500. तो इसको सेलिंग प्राइस को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं. ठीक है. 2,500 लेस करने के बाद अब इसका प्राइस कितना बचा? वी कैन से 22,500. 22,500. यहां तक क्लियर? यस सर. इसके बाद अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश डिस्काउंट, लेट अस से अगेन 10%, तो इस 22,500 पे हम निकालेंगे 10% कैश डिस्काउंट. जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद अमाउंट आया है उस पे निकलेगा कैश डिस्काउंट. क्लियर? तो इस Yes, एग्जांपल में कितना हो जाएगा कैश डिस्काउंट? 2,250. 8,004. 2,250 will be cash discount in this example. ठीक है. लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द अमाउंट विच इज बीइंग पेड इमीडिएटली. अगर इस 22,500 में से सपोज कस्टमर कहता है कि जी मैं 20,000 अभी पे कर देता हूं, 2,500 बाद में पे करूंगा, तो हम जो कैश डिस्काउंट देंगे वो उसे देंगे 20,000 पे, जितना अमाउंट वो अभी पे कर रहा है. ठीक है. तो तब हमारा कैश डिस्काउंट कितना निकलेगा? 2,000. 2,000. ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes. यस सर. ठीक है. उसके बाद लास्ट में हम ऐड करेंगे जीएसटी. अगर हमें क्वेश्चन में जीएसटी भी दिया हुआ है तो वो हम ऐड करेंगे लास्ट में. ठीक है. So I am reading out, if cash discount is given, it is then calculated on the remaining amount and reduced from it. ठीक है. कई बार क्वेश्चन में वर्ड दिया होता है हमें रिबेट, वो भी डिस्काउंट का की तरह ही है, बस डिस्काउंट की जगह हम उसमें लिख देंगे रिबेट अलाउड या रिबेट रिसीव. बाकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है कैश डिस्काउंट की तरह. जीएसटी अगर दिया हुआ है, जीएसटी कैलकुलेट होगा कैश डिस्काउंट के बाद भी जो अमाउंट बचा उस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा, बिकॉज जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द कस्टमर बट कलेक्टेड थ्रू द सेलर. सेलर कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा करवा देता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. ठीक है. जीएसटी लास्ट में कैलकुलेट होगा. बेशक ट्रांजैक्शन में हमें सबसे पहले जीएसटी दे रखा हो,
goods worth rupees 20,000 sold and GST rate is let us say 5%. उसके बाद दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बट कैलकुलेशन करते हुए हम पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट लेस करेंगे, फिर रिमेनिंग अमाउंट पर जीएसटी निकालकर और जीएसटी को ऐड करेंगे। क्लियर? सर जो जीएसटी होता है वो लास्ट में क्यों कैलकुलेट होता है डिस्काउंट लगाने के बाद? सपोज गवर्नमेंट कह रही है आपको कि 5% आपने टैक्स देना है जो भी चीज आप खरीदोगे उस पे, ठीक है? आपने 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे जिस पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया पहले 2,000 रुपए, तो अब आपको 8,000 पे करने हैं। फिर उस पे 1,000 का आपको Yes, लेटर से कैश डिस्काउंट मिल गया, तो आपने नेट कितने पे करने हैं? 7,000। 7,000। अब टैक्स आप 10,000 पे दोगे या 8,000 पे दोगे या 7,000 पे दोगे? 7,000। 7,000 पे means the price which you are paying after all discounts. ठीक है? GST is an expenditure tax basically, कि जो आप कस्टमर खर्चा कर रहा है गुड्स को खरीदने पे, उस पे उसने टैक्स देना है, तो वो जितना खर्चा कर रहा है उसी पे तो टैक्स देगा ना, सारे डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आया। क्लियर? Yes, sir. तो ये ऑर्डर क्लियर है? Yes. ओके। चिंतन हैज रेज्ड हैंड। यस चिंतन बोलो। सर जितना वो डेटर बन गया हम उस पे भी लगाएंगे या फिर सिर्फ जो प्रॉम्प्ट वो कैश दे रहा है उस पे लगाएंगे? अपनी माइक की वॉल्यूम बढ़ा लो या फिर थोड़ा जोर से बोलो। सर मतलब जो वो उसी वक्त कैश दे रहा है हम उस पे जीएसटी लगाएंगे या फिर जो डेटर बन गया वो हमारे पे जो अभी हमने एग्जांपल लिया 10,000 रुपीज प्राइस था, उस पे 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, 8,000 रुपए वैल्यू आ गई। ठीक है? अब 8,000 में से सपोज वो 5,000 रुपए अभी पे कर रहा है कस्टमर, ठीक है? तो 5,000 पे कैश डिस्काउंट मिलेगा उसे। कैश डिस्काउंट का जो भी रेट है अगर 10% है तो 5,000 का 10% यानी 500 रुपए कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो 500 रुपए और लेस हो जाएंगे। 8,000 में से 500 लेस हुए, 7,500 रह गए। तो 7,500 सर 5,000 में से होगा ना? 5,000 पे होना था ना? हाँ जी सर 5,000 पे होगा ना 500 लेस? सर 5,000 पे 500 लेस होगा ना, क्योंकि कैश तो वो 5,000 पे कर रहे हैं। यस, लेकिन टैक्स तो उसने बाकी अमाउंट पे भी देना है ना, जो उधार वाला अमाउंट है टैक्स तो उस पे भी देना है ना। अच्छा मतलब कि नेट पेमेंट पे देना है चाहे वो अभी दे या बाद में दे? बिल्कुल बिल्कुल। सर तो इसका मतलब तो जीएसटी पहले लग रहा है कैश डिस्काउंट लगने से? नहीं, जीएसटी बाद में लग रहा है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं फिर थोड़ा क्लियर होगा। देखो एक मिनट, मेहुल ऑल्सो वांट्स टू से समथिंग, पहले उसकी भी बात सुन लेते हैं। यस मेहुल। सर आई हैव अ डाउट। यस आस्क। सर अगर क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट 20% प्रॉफिट और फिर हमें टीडी भी दे रखा है और जीएसटी भी दे रखा है, तो इसमें सेल्स भी दे रखा है 20% प्रॉफिट। 20% ऑन सेल्स। यस सर। और कॉस्ट दे रखी है आपको 20,000 है ना, तो 20% 20% का मतलब हुआ 1/5 है ना। तो 1/5 Yes, sir. सेल का है तो कॉस्ट का होगा 1/4। तो Yes, sir. 20,000 कॉस्ट पे 1/4 5,000 रुपए ऐड कर दो, ये वही एग्जांपल हो गया जो अभी हमने लिया था। तो 25,000 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ गया पहले। अब आगे बढ़ाओ अपने क्वेश्चन को। तो सर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हम सेल्स को एक्स ले लेते हैं और उसका प्रॉफिट हो जाएगा 20/100 इंटू एक्स, कर सकते हो हाँ। फिर हम SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट से निकाल लेंगे, हमारा SP आ जाएगा और फिर उसको प्रॉफिट में वो कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, फिर प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है उसके आपको। बाद TD माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस ही तो निकालना था आपने, इक्वेशन बना के सेलिंग प्राइस डायरेक्टली निकाल लिया तो वो भी निकाल सकते हो, वो थोड़ी सी लॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उससे भी आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा आपका टाइम और एफर्ट ज्यादा लगेगा। इक्वेशन बना के करोगे,
इससे डायरेक्टली ओरली आपके माइंड में हो जाएगा। ये जो मैंने n/d वाला फॉर्मूला बताया है, जैसे ही आपको पता चला अच्छा 20% ऑफ सेल्स मतलब 1/5, तो कॉस्ट का 1/4, कॉस्ट दी हुई है 20,000, तो 5,000 सीधे सीधे प्रॉफिट ऐड किया, 25,000 सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, कर वैसे भी सकते हो। और कोई डाउट मेहुल? नो सर। ओके नो सर। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जो चिंतन ने डाउट रेज किया था उससे रिलेटेड। लेट अस टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। देखो हमने एग्जांपल लिया, अभी इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। 25,000 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इस 25,000 में से हमने कैश डिस्काउंट, सपोज इसमें ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल गया 5,000 रुपए, और लेट अस से 2,500 रुपीज, 10% लिया था ना हमने ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमारा अमाउंट आ गया था 22,500। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद सपोज हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 22,500 में से वो पे कर रहा है 15,000 रुपीज अभी। ठीक है, और बाकी के 7,500 पे करेगा कस्टमर बाद में। ये एक साथ क्यों आ गया? एनीवेज ये समझ लेना, 15,000 इधर है, 7,500 उधर है, क्रेडिट वाला। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट हमें दे रखा है 10% अगेन, तो कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा? 15,000 पे, है ना? 15,000 पे लेस होगा -1,500। 13,500. ठीक है, तो अब कितना बचा? 13,500 जो उसने कैश पे करना है 13,500 उसने कैश पे करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अब सपोज हमें दे रखा है जीएसटी 5%, तो जीएसटी किस पे लगेगा? एक तो इस 13,500 पे लगेगा, इसका 5% और ऐड हो जाएगा। दूसरा इस 7,500 पे भी तो लगेगा, जो उधार है उस पे भी टैक्स तो लेना है ना। तो टैक्स 13,500 प्लस 7,500 यानी 22,000 पे टैक्स लगेगा, 21,000 पे, सॉरी। क्लियर? सर नहीं, ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ? जीएसटी वाला। ओके, तो फिर इसको अभी छोड़ो, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब क्लियर होगा ये। ठीक है, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन आएगी तब करेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। अभी बस ऑर्डर ध्यान रख लो, पहले कॉस्ट से निकालना है प्राइस, अगर हमें प्राइस डायरेक्टली नहीं दे रखा तो। फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, फिर कैश डिस्काउंट लेस करना है, इन दी एंड वी विल ऐड जीएसटी। क्लियर? यस। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस सम स्पेसिफिक एंट्रीज। अब इन एंट्रीज में जब हम डिस्कस करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ जगह पे ना ये ऐसे लिखा होगा, ये देखो लेस देन साइन, फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर ग्रेटर देन साइन, तो वहां पर ये इसकी जगह नाम आना है। सपोज ये एंट्री अगर आप फर्स्ट वाली देखो, इसमें लिखा हुआ है टू डेटर, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो डेटर की जगह जो ट्रांजैक्शन में डेटर का नेम दिया होगा हमें, वो नेम आ जाएगा। सपोज डेटर्स नेम इज चिंतन, तो यहां पर आ जाएगा टू चिंतन। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसे लिखा हुआ है इसका ये मतलब है। ऐसे ही इस एंट्री में देखो, यहां पर लिखा हुआ है एक्सपेंस, तो ये जोन सा एक्सपेंस होगा इसकी जगह वो आ जाएगा। इस तरह से लिखने का मतलब ये है, सैलरी होगी तो सैलरी अकाउंट आ जाएगा, रेंट होगा तो रेंट अकाउंट आ जाएगा। क्लियर? फर्स्ट एंड अब कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जर्नल एंट्री होती है इन चीजों की। फर्स्ट इज बैड डेट्स। व्हाट आर बैड डेट्स? सर जब अमाउंट इनरिकवरेबल हो जाता है, जब बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है। यस, सपोज
हमने चिंतन से 10,000 रुपीज लेने थे। चिंतन वॉज आवर डेटर फॉर रुपीज 10,000। उसमें से 6,000 रुपीज तो उसने पे कर दिए, 4,000 वो पे नहीं कर रहा और हम रिकवर नहीं कर पा रहे। अब क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट, जो अमाउंट तो उसने पे चिंतन कर दिया, अकाउंट। कैश में पे कर दिया तो कैश अकाउंट डेबिट। अगर उसने बैंक के थ्रू पे किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। ठीक है। फिर जो अमाउंट रिकवरेबल नहीं है, दैट इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000। टू चिंतन, उसका अकाउंट अब हम पूरा क्लोज कर देंगे। कितने अमाउंट से? 10,000। 10,000। तो एंट्री हो गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000, टू चिंतन 10,000। क्लियर? तो इन जनरल टर्म्स इसकी एंट्री क्या हुई? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और ब्रैकेट में लिख लो अमाउंट रिसीव्ड, जितना मिल गया। फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो अमाउंट इररिकवरेबल, मतलब जो अमाउंट नहीं रिकवर हो पा रहा। ठीक है। टू डेटर, डेटर की जगह नाम आ जाएगा अगर क्वेश्चन में दिया है। अगर नाम नहीं दिया तो हम सिंपली टू डेटर लिख देंगे और फिर लेस देन ग्रेटर देन साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ टू डेटर लिखेंगे। क्लियर? यस सर। विद, और ब्रैकेट में लिख दो टोटल, मतलब उसका अकाउंट हमने क्लोज करना है। नेक्स्ट इज बैड डेट्स रिकवर्ड। अब सपोज कुछ हमने 4,000 रुपए पिछली एग्जांपल में डिस्कस किए, चिंतन के बैड डेट लिख दिए। अब सपोज कुछ टाइम बाद वो 4,000 रुपए दे देता है, अब उसके पास हैं पैसे और वो देने को तैयार है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमने तो तुम्हारा अकाउंट क्लोज कर दिया है ना। विल वी से सर दैट? नहीं, हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम उस टाइम ले लेंगे। एब्सोल्युटली। पैसे आ रहे हैं तो सबको अच्छे लगते हैं, पैसे आते हुए रिकवर हो रहे हैं तो हम कहेंगे लो थैंक यू वेरी मच, हमें उम्मीद नहीं थी ये पैसे मिलेंगे पर तुम दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच, और हम पैसे ले लेंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि पैसे हमें मिल गए। लेकिन अब हम चिंतन को क्रेडिट नहीं कर सकते, जबकि गिवर वो है, पर उसे क्रेडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका अकाउंट हम क्लोज कर चुके थे। क्लोज करने के बाद अब अगर हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो ऐसा लगेगा कि वो हमारा क्रेडिटर बन गया, मतलब हमने उसे पैसे देने हैं। तो उसकी जगह हम लिखेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैड डेट डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये हमारा गेन हो गया कि जो हम राइट ऑफ कर चुके थे, जिसको हम अपना लॉस मान चुके थे, वो पैसे मिल गए, तो ये हमारा गेन हो गया। तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट तो कैश या फिर बैंक अकाउंट को जब डेबिट करेंगे तो बैड डेट्स वाला अमाउंट आएगा ना जो उसने अभी दिया है। यस, उसने अभी अगर सपोज 4,000 में से 2,000 दे दिए तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2,000। रिटर्न। यस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सन्ड्री एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्या होते हैं ये? सेवरल स्मॉल एक्सपेंसेस इंकर्ड विच कैन बी क्लब्ड टुगेदर। सपोज जो कभी कभी होने वाले छोटे छोटे खर्चे हैं, सपोज कुछ लेटर्स पोस्ट की तो पोस्टेज पे कुछ खर्चा हो गया। जनरली बहुत ज्यादा खर्चा हमारा या रेगुलरली पोस्टेज पे खर्चा नहीं होता, ठीक है। तो लेट अस से पूरे महीने में 10-20 रुपए कुछ पोस्टेज पे खर्च हो गए, कुछ 40-50 रुपए रिक्शा के खर्च हो गए जो जनरली हमारे खर्च नहीं होते। तो ऐसे एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग अकाउंट अगर हम खोलते रहेंगे तो बहुत सारे अकाउंट्स खुल जाएंगे। अगर तो रेगुलरली हमारा पोस्टेज का एक्सपेंस होता है तो हम पोस्टेज अकाउंट अलग से बनाएंगे। अगर हमारा रेगुलरली कन्वेंस पे खर्चा होता है, कन्वेंस अकाउंट वी विल मेक सेपरेटली। बट इफ दीज आर irregular expenses which are incurred occasionally, not frequently, not regularly, and amounts are also small,
तो हम एक अकाउंट बना सकते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट या मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, और इन सारे एक्सपेंसेस को उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अब सन्ड्री या मिसलेनियस कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ वर्ड दिया हुआ है, सन्ड्री दिया हुआ है तो सन्ड्री ही लिखना है, मिसलेनियस दिया हुआ है तो मिसलेनियस ही लिखना है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? सर तो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा ना कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंकर्ड। यस, मेंशन्ड होगा। अगर मेंशन्ड नहीं हो, इस तरह से दे दिया जाए दैट सेवरल स्मॉल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज लेट अस से 75 इंकर्ड, तो हम सन्ड्री या मिसलेनियस कुछ भी लिख सकते हैं। और सर अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया हो कि पोस्टेज ₹10, मतलब हाँ। अगर सिर्फ पोस्टेज नाम दिया और तो फिर हम ये नाम postage- ना दिया तो हम हाँ, तो फिर हम पोस्टेज अकाउंट ही लिखेंगे, फिर हम सन्ड्री या मिसलेनियस में उसे नहीं डालेंगे जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा गया। ओके सर। ठीक है, और अगर क्वेश्चन क्या दे, पोस्टेज 10 रुपए, कन्वेंस 40 रुपए, ठीक है, रिफ्रेशमेंट अनदर 30 रुपीज, और फिर आगे लिख दें कि क्लब ऑल दीज एक्सपेंसेस इन सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो हम कर देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट और सारे अमाउंट ऐड करके। और सर अगर एंड में ना लिखा हो कि क्लब देम टुगेदर, तो सर सबके अलग अलग खोलने पड़ेंगे अकाउंट। Yes, फिर हम सबके अलग अलग अकाउंट खोलेंगे। क्लियर? एनी डाउट एनीवन? यस सर। नो सर। Okay, so we stop today's discussion over here. Next class के लिए एक क्वेश्चन नोट्स ये आपके पास हैं, इलस्ट्रेशन 2 का क्वेश्चन नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और सॉल्यूशन के लिए एक फुल पेज का जर्नल का फॉर्मेट बना के रख लेना नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कुछ एंट्रीज हो रहे हैं, डिस्कस करने के बाद फिर हम इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। ओके सर। सर। थैंक यू। थैंक यू सर।